یہ اس زمانے کی بات ہے جب عثمانی سلطنت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر حکمران تھی۔ استنبول کے مینار آسمان کو چھوتے تھے اور سلطان کا دربار دنیا کا سب سے طاقتور دربار تھا۔ لیکن اس شاندار شہر کی تنگ گلیوں میں، جہاں بازاروں کی رونق تھی اور مسجدوں کی اذانیں گونجتی تھیں، ایک ایسی کہانی جنم لے رہی تھی جو طاقت کی نہیں بلکہ رشتوں کی کہانی تھی، خون کی، محبت کی اور معافی کی۔ استنبول کے ایک خوشحال محلے میں ایک بڑا اور پرانا مکان تھا جو آل عمر کی پہچان تھا۔ اس خاندان کا نام پورے بازار میں عزت سے لیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے بزرگ عمر آغا نے دہائیوں کی محنت اور ایمانداری سے ریشم کی تجارت میں وہ مقام حاصل کیا تھا جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ عمر آغا کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا داؤد تھا۔ داؤد باپ کی طرح ذہین اور محنتی تھا۔ تجارت کی باریکیاں اس نے بچپن سے سیکھی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا، کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو وزنی بات کرتا تھا۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام طارق تھا، جو باپ کی طرح سمجھدار اور ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا۔ چھوٹا بیٹا یوسف تھا۔ یوسف خوبصورت تھا، ملنسار تھا اور ہر محفل میں جان ڈال دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، لیکن یوسف کے اندر ایک کمزوری تھی جو اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ داؤد کو جو ملا وہ اسے کیوں نہیں ملا۔ اس کا بیٹا سالم تھا، جو باپ کی اسی سوچ کو اپنے خون میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ عمر آغا نے ہمیشہ دونوں بیٹوں کو برابر رکھا، برابر محبت، برابر وقت، برابر توجہ۔ لیکن ایک دل کو کون سمجھائے جو ہمیشہ موازنہ کرتا رہے؟ اور پھر وہ دن آیا جس کا ڈر عمر آغا کو ہمیشہ رہتا تھا۔ سلطنت کا عظیم دربار، اونچی چھتیں، سنگ مرمر کے فرش، دیواروں پر نقش و نگار۔ دربار کے ایک کمرے میں قاضی اور 2 گواہوں کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ یہ عمر آغا ہے۔ چہرہ زرد ہے، سانس بھاری ہے، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانی روشنی ہے۔ ان کے دونوں طرف داؤد اور یوسف بیٹھے ہیں۔ داؤد کے چہرے پر فکر ہے، یوسف کے چہرے پر ایک بے چینی ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قاضی: عمر آغا، آپ نے وصیت لکھوانے کے لیے بلایا ہے، بیان فرمائیں۔ عمر آغا: جی قاضی صاحب، میری ریشم کی دکانیں، گودام اور یہ مکان، یہ سب میں برابر 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، داؤد کو آدھا، یوسف کو آدھا۔ یوسف کی نظریں اٹھتی ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ داؤد: ابا جان، آپ کو ابھی یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، پہلے صحت ٹھیک کریں۔ عمر آغا داؤد کا ہاتھ تھام کر: بیٹا، وقت کسی کو نہیں بتاتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم دونوں مل کر رہو، لڑو نہیں، یہ جائیداد رشتے سے بڑی نہیں ہے۔ عمر آغا یوسف کی طرف دیکھتے ہیں۔ عمر آغا: یوسف بیٹا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یوسف ایک لمحے کے لیے رکتا ہے: نہیں ابا جان، جو آپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ بڑا کمرہ، عمر آغا بستر پر لیٹے ہیں، کمرے میں چراغ جل رہا ہے، باہر سے استنبول کی رات کی آوازیں آتی ہیں۔ یوسف اکیلا باہر صحن میں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہے، لیکن وہ پی نہیں رہا، بس سوچ رہا ہے۔ اس کا بیٹا سالم آتا ہے اور پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سالم: ابا، کیا سوچ رہے ہو؟ یوسف: سالم، تم نے سنا آج دربار میں کیا ہوا؟ سالم: جی ابا، دادا نے برابر تقسیم کی۔ یوسف: برابر؟ چاؤد نے باپ کے ساتھ 30 سال کام کیا، میں نے بھی کیا، لیکن بازار میں سب جانتے ہیں کہ آغا کی اصل دکان کون چلاتا تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ تجارت کبھی اتنی نہ بڑھتی۔ سالم: تو پھر ابا؟ یوسف: کچھ نہیں، سو جاؤ۔ سالم اندر چلا جاتا ہے۔ یوسف وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک فیصلے کا سایہ ہے جو ابھی ابھی گزرا ہے۔ عمر آغا کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ داؤد صبح سویرے آتا ہے، پانی لاتا ہے، دوا دیتا ہے، باپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ داؤد: ابا جان، حکیم نے کہا ہے کہ آرام کریں، کوئی فکر نہ کریں۔ عمر آغا: داؤد، یوسف نہیں آیا آج؟ داؤد: آتا ہوگا ابا جان، شاید کام ہوگا۔ عمر آغا داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ عمر آغا: بیٹا، یوسف ناراض ہے؟ داؤد: نہیں ابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ بات ہے۔
यूसुफ 3 दिन से नहीं आया। इस्तांबुल का बड़ा बाजार, रेशम की दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े, आते जाते लोग। यूसुफ अपने हिस्से की दुकान पर बैठा है, सालिम साथ है। एक पुराना गाहक आता है। यूसुफ बेग, आगा साहब की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दाऊद बेग कह रहे थे कि आप लोग मिलकर कारोबार चलाएंगे आगे भी। जी, देखते हैं। गाहक चला जाता है। सालिम बाप के करीब आता है। अब्बा, मैंने सुना है कि दाऊद चचा ने गोदाम में नया हिसाब किताब शुरू किया है। कहते हैं कि तकसीम से पहले का कुछ माल उनके नाम है जो अभी तक अलग नहीं हुआ। क्या? मैंने खुद सुना अब्बा, गोदाम के नौकर बात कर रहे थे। यूसुफ के चेहरे पर एक साया आता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में शक की आग जल उठती है। उमर आगा सो चुकी हैं। घर खामोश है। यूसुफ चिपके से बाप के कमरे में आता है, मेज की दराज खोलता है, कागजात देखता है। हाथ कांप रहे हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है, यूसुफ, ये क्या कर रहे हो? यूसुफ पलटता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। खामोशी बहुत भारी है। कागजात देख रहा था। बाप के हैं, मेरा भी हक है। रात को छुपकर, एक कदम आगे बढ़कर दाऊद सीधी बात करते हैं। गोदाम में क्या हो रहा है? मेरे हिस्से का माल कहाँ है? कौन सा माल? तकसीम अभी हुई नहीं, सब अब्बा जान का है अभी तक। मैंने सुना है कि तुमने अलग हिसाब शुरू कर दिया है। जिसने ये कहा उसने झूठ कहा। अंदर से आवाज आती है, उमर आगा। कौन है? दाऊद? यूसुफ? दोनों भाई चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिर दाऊद पलट कर चला जाता है। यूसुफ वहीं खड़ा रहता है। उमर आगा बैठे हैं। चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लगता है। दाऊद एक तरफ खड़ा है, यूसुफ दरवाजे में है। उमर आगा, कल रात क्या हुआ? खामोशी। उमर आगा, बोलो। अब्बा जान, कुछ नहीं हुआ, बस यूसुफ को कुछ गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी नहीं अब्बा जान, मैंने सुना है कि गोदाम ने, दाऊद ने। उमर आगा, बस। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उमर आगा, मैंने सारी जिंदगी एक डर के साथ गुजारी। ये डर कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों लड़ोगे। लगता है वो वक्त आ गया। दाऊद और यूसुफ दोनों का सर झुक जाता है। उमर आगा, यूसुफ, अगर तुम्हें लगता है कि दाऊद ने गलत किया तो मुझसे पूछते। रात को छुपकर कागजात क्यों देखे? यूसुफ कुछ नहीं कहता। उमर आगा, और दाऊद, अगर यूसुफ को गलतफहमी हुई तो उसे समझाते, गुस्से से नहीं, मोहब्बत से। दोनों खामोश हैं। उमर आगा, जाओ, आज कोई बात नहीं करनी मुझे। यूसुफ और सालिम आमने सामने बैठे हैं। कमरे में एक चिराग है। तुमने जो सुना था वो किससे सुना था? गोदाम के एक नौकर से अब्बा। और तुमने मुझे बता दिया बगैर सोचे कि सच है या नहीं? अब्बा, मैंने तो बस। सालिम, एक नौकर की बात सुनकर मैंने अपने भाई पर शक किया। अपने बाप के कमरे में रात को गया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। सालिम सर झुका लेता है। और मैंने भी नहीं किया। रात का आखिरी पहर है। उमर आगा की सांसें भारी हो गई हैं। दाऊद और तारिक एक तरफ बैठे हैं, यूसुफ और सालिम दूसरी तरफ। एक अजीब सी खामोशी है कमरे में। चिराग की लो कांपती है। उमर आगा, सब यहाँ हो? दाऊद, जी अब्बा जान, सब हैं। उमर आगा, दाऊद का हाथ थामते हैं। दाऊद, तुमने कभी मुझे मायूस नहीं किया। फिर यूसुफ की तरफ देखते हैं। उमर आगा, यूसुफ? आगे बढ़ता है, आंखें भरी हुई हैं। अब्बा जान, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। उमर आगा, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें कब से माफ किया हुआ है। यूसुफ का रोना फूट पड़ता है। तारिक, सालिम, करीब आओ। दोनों जवान लड़के आगे बढ़ते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तुम दोनों अगली नस्ल हो, मेरी बातें सुनो और याद रखो, जायदाद तकसीम हो सकती है, कारोबार बढ़ सकता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं टूटता। जब भी मुश्किल आए, पहले अपने भाई के दरवाजे पर जाना, फिर किसी और के। तारिक और सालिम सुन रहे। अल्लाह तुम सबको आबाद रखे। दाऊद को, यूसुफ को, तारिक को, सालिम को।
कमरे में मुकम्मल खामोशी है। फजर की आज़ान शुरू हो जाती है। उमर आगा की सांसें रुक जाती हैं। दाऊद और यूसुफ दोनों रोते हैं। तारिक और सालिम भी। जनाजा हो चुका है, लोग जा चुके हैं। सहन में दाऊद और यूसुफ अकेले बैठे हैं। पहली बार बरसों में अकेले। लंबी खामोशी है। यूसुफ, दाऊद, दाऊद, यूसुफ। वो गोदाम वाली बात। मुझे पता चला कि वो नौकर ने झूठ बोला था। उसने मुझे और तुम्हें लड़वाना चाहा था ताकि अथल पथल में वो माल चरा सके। दाऊद कुछ नहीं कहता। यूसुफ, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। दाऊद, यूसुफ, मैं तुम्हारा भाई हूं। हमने एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप के हाथ थामे हैं। मैं तुम्हारी जायदाद नहीं चाहता था कभी। मैं बस चाहता था कि तुम मुझ पर भरोसा करो। यूसुफ की आंखें भर आती हैं। यूसुफ, मुझे माफ कर दो। दाऊद उठता है और यूसुफ के पास आता है, उसे गले लगा लेता है। दोनों भाई बहुत देर तक खामोश रहते हैं। इस्तांबुल का बाजार अपनी पूरी रौनक में है। रेशम की दुकान के बाहर एक नया तख्ता लगा है जिस पर लिखा है आले उम्र, दाऊद और यूसुफ और शुरका। अंदर तारिक और सालिम मिलकर काम कर रहे हैं। तारिक हिसाब देख रहा है, सालिम गाहक से बात कर रहा है। एक गाहक आता है। गाहक, ये दुकान नहीं है? सालिम, जी, हमने मिलकर शुरू की है, तारिक भाई और मैंने। गाहक, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? सालिम, भाई हैं हम। तारिक कोने से सुनता है और मुस्कुराता है। दिन खत्म हो गया। तारिक और सालिम बैठे हिसाब मिला रहे हैं। बाहर इस्तांबुल में मगरिब की अजान गूंजती है। तारिक भाई, एक बात पूछूं? पूछो। जब हमारे बाप लड़ रहे थे तो तुमने कभी मुझसे दुश्मनी नहीं की, क्यों? तारिक कुछ देर सोचता है। मेरे दादा ने मुझसे एक बार कहा था कि बेटा, बापों की लड़ाई बेटों की नहीं होती। हर नस्ल को अपना फैसला खुद करना होता है। मैंने फैसला किया कि मैं अपने चचा के बेटे को दुश्मन नहीं मानूंगा। सालिम एक लम्हे के लिए चुप रहता है। मैंने भी यही फैसला किया था, बस कहने की हिम्मत नहीं थी। दोनों हंसते हैं, पहली बार खुलकर। कब्रिस्तान। सुबह की धूप कब्रों पर पड़ रही है। दाऊद और यूसुफ साथ आए हैं। उनके पीछे तारिक और सालिम हैं। चारों बाप की कब्र के पास खड़े हैं। दुआ मांगते हैं। दुआ के बाद खामोशी है। यूसुफ, अब्बा, आपका डर गलत नहीं था। हम लड़े, लेकिन आपकी दुआएं सच्ची थीं। हमने माफ़ कर दिया एक दूसरे को, और हमारे बेटों ने वो गलती नहीं की जो हमने की थी। तारिक और सालिम एक दूसरे को देखते हैं। हुआ चलती है, खामोश और ठंडी, जैसे उमर आगा की रूह को सुकून मिल गया हो। आज भी इस्तांबुल के पुराने बाजार में आले उमर की दुकान है। नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन वो तख्ता आज भी लगा है। और उस दुकान में काम करने वाले जानते हैं कि ये तिजारत सिर्फ रेशम की नहीं, इसमें एक बूढ़े बाप की दुआएं भी शामिल हैं जो आज भी जिंदा है। मीरास सिर्फ जायदाद नहीं होती। जो बाप अपने बच्चों के लिए माफ़ी और मोहब्बत छोड़ जाए, वही असल वारिस होते हैं। और जो नस्ल अपने बुजुर्गों की गलतियों से सीखे, वही आगे बढ़ती है।